وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بذنب قضائه وتسليما لأمره إلى هجرة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وصل المستودع فيها پروردگار ہمارے اس مقدس مجلس اعزا کو قبول فرما، جہاں جہاں بھی مسلمانان ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمیں جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما، ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگار ہمارے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آواز میں سماع فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ما كان کو گرانا
سامنے آ کر لگائی تیغ جفا، غریب زہارا قضی پر سنبھلنا مشکل تھا۔ علی زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا، حسین گرتے نہیں تھے گرایا جاتا تھا۔ لگا جو تیر تو اصغر کو شہنشاہ کیا، پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گرد لگا، ارے لگی جو برچھی تو اکبر کو دی تڑا کے صدا، تماچا خون نے مارا تو بولے یا زہرا، علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے، حسن کو یاد کیا منہ سے خون گلتے ہوئے، زمین پہ دین سے حضرات جو منہ کے بل آئے، جو تیر سینے میں تھے پوشت سے نکل آئے، نکل کے پہلو سے سب برچھیوں کے پھل آئے، قرار کی طرح شہر کو ایک پل آئے، رکاب پاؤں سے ابن علی کی چھوٹ گئی، تمام پسندیاں صبتے نبی کی ٹوٹ گئی۔ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمدا، اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے ہاتھ پر، عاشور کا شرمندہ سورج مقتل میں غروب ہو گیا، ڈوبتے سورج سے پوچھا یہ ابھرتے چاند نے، کب سے ریگے گرم پہ رکھے ہیں رخسارے حسین۔ آپ کے سامنے دل خراش منظر ہے، قیامت کے مصائب سن چکے، لیکن اب جو شبیہ ہے جسے دیکھ کے کلیجہ پھٹ جائے گا، خدا کرے وہ بہنیں سلامت رہیں جن کے جوان بیٹوں نے یہ اہتمام کیا ہے، خدا کرے وہ بچے سلامت رہیں جو مقتل کے ان بچوں کی آنکھ میں انہوں نے یہ فرش اعزا بچھائی ہے، خدا کرے وہ بزرگ سلامت رہیں جو حسین کی غربت پہ روتے رہتے ہیں۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، آج اس بستی میں بچوں نے اہتمام کیا ہے، لیکن ہاں مصیبت تو یہی ہے کہ اگر بچے متوجہ ہو جائے تو پھر قیامت ہے۔ بس یہ موقع ہے دعا کرنے کا، آپ سب دعا کر لو کہ خالق کائنات سب کو مرنے سے پہلے کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ جائیے سرزمین کربلا پر اور اب کا منظر دیکھ لیجئے، اس وقت جوگ در جوگ زائرین کربلا پہنچ رہے ہیں، کوئی پانی لیے کھڑا ہے، اے زائر حسین آ تجھے پانی پلا دو، کوئی کہتا ہے اے زائر حسین تو چلتے چلتے تھک گیا ہوگا، آ میں تیرے پیر دبا دوں۔ یاد آیا کچھ آپ کو؟ حسین کی 4 برس کی بچی مقتل سے روتی گزر گئی تھی، رخسار پہ نیل کے نشان تھے، جلا ہوا دامن تھا، سر پہ گرد کربلا پڑی تھی، کانوں سے بہتا ہوا تازہ لہو تھا،
और ये कहती थी बाबा तुम्हारे बाद किसी ने सकीना कह के न बुलाया, यतीमा कह के बुलाया है। उसे गरीब की मैयत की शबीह ताबूत आपके दरमियान इंशाअल्लाह बस 2-4 लम्हे में आने वाला है। दुआ कर लीजिए कि खालिद आसफ को करबला ज़ियारत नसीब करे। जाइए ज़ियारत करके आइए, उस पूरे मंजर को महसूस कीजिए, कलेजा फट जाएगा। बहुत क़यामत के मसाइल भी आपने सुने हैं। तो एक फिक्रा सिर्फ और सिर्फ एहसास के लिए पेश करता हूँ ताकि आप तबर्रुकात की ज़ियारत कर सकें। रोते रोते थक गए होंगे, सांस ले लीजिए, इसलिए कि अकबर की माँ पे रोना है, इसलिए कि वो माँ जो बेटे को रोना चाहती थी रो न सकी। रबाब की वीरान गोद का मातम करना है, फरवा की गुर्बत का मातम करना है, हाय उन बीबियों की तन्हाई का मातम करना है। ज़्यादा सांस ले लीजिए, एक तरह से मुझे एक मंजर पेश करना है और उसके बाद आप सरोसीना पीट के इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हाँ, दुआ फिर कहता हूँ, दुआ कर लीजिए कि खालिद आसफ को करबला ज़ियारत नसीब करे। अजीजों, जैसे भी आपने एक आलिम दीन से मसाइब सुना कीजिए, मजलिस में बैठा कीजिए। ऐसी एक शख्स जो मजलिसों में शरीक होता था, बैठता था। देखिए करबला एहसास का नाम है। मैं कहता हूँ ना कि हुसैन आपका गम कितना नफ्सियाती है, ज़रा सी बात बहुत देर तक रुलाती है। अजीजों, वो बैठ के रोया करता था तन्हाई में, मगर हालत गुर्बत की थी, करबला नहीं जा सकता था। तड़प के कहता था मौला करबला बुला लो। ये मत सोचना कि तुम्हें कोई देख नहीं रहा है, नहीं, देखने वाले देख रहे हैं। तुम जब तड़प के रोते हो तो वो दुआएं देते हैं, पर्दे वाला वारिस तुम्हें दुआएं देता है। तुम्हें क्या पता मेरे जग को कैसे रुला रुला के शहीद किया गया है। अजीजों, वो दुआ किया करता था कि किसी ने उससे आके आहिस्ता से कहा, ए शख्स मुबारक हो, तुझे करबला जाना नसीब हुआ है। आपको ये एहसास दुनिया में तबर्रुकात में कि जहाँ रो रहे हैं ना, दुआ कीजिए मालिक आपको वहाँ जाने की तौफीक इनायत फरमाए। अब वो तड़प के रोने लगा, उसकी चीख निकल गई, हाय मेरी गुर्बत, और मैं करबला जाऊँगा। कहाँ, हाँ तुझे करबला जाना नसीब हुआ। अजीजों, अब उसने सामान सफ़र तैयार किया, वो करबला मोहल्ला के लिए रवाना हुआ। जैसे ही उसने सरजमीन करबला पे कदम रखा, तो अभी तक मजलिसों में सुना करता था, अब उसकी चीख निकल गई। यही वो ज़मीन है कि जहाँ हुसैन ने अकबर की मैयत अकेले उठाई थी। यही वो सरजमीन है जहाँ अली की बेटियों के सरों से चादरें छीनी गई। यही वो सरजमीन है जहाँ हुसैन की प्यासी बच्ची रोती हुई गुजर गई। यही वो सरजमीन है जहाँ हुसैन के बेटे सज्जाद को हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पिलाई गई। ये कह के चीखता और रोता हुआ हरम की तरफ बढ़ने लगा। सुनते जाइएगा, तो क़यामत उसी के बाद शबी की ज़ियारत कीजिएगा। और जो रोता हुआ वो हरम की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जरी के करीब पहुंचा, उसकी एक चीख निकली और रो के कहता है, बस मैं आ तो गया हूँ, लेकिन अब घर नहीं जाऊंगा। ये कह के उसने अपना पासपोर्ट सारे डॉक्यूमेंट्स फाड़ दिए, तब मैं अब घर नहीं जाऊंगा। ये कह के चीख मार के रोता था। हरम के करीब आकर के मौला की तन्हाई पे आंसू बहाया करता था। एक दिन गुजरा, एक हफ्ता गुजरा, एक महीना गुजरा, साल आ गया। किसी ने आहिस्ता से उसके कान में ऐसा महसूस हुआ, कोई कह रहा है कि जाओ घर चले जाओ। नहीं, आपने महसूस नहीं किया मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए कि मैं फिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो ताबूत आने वाले हैं ना, 2 शबीहों को मुझे बताया गया है। एक आगे गनी ज़हरा का जनाजा होगा, जिसे बतूल में चक्कियाँ पीस के पाला है। पीछे वो हुसैन कि जिसने 18 मैयतें उठाई थी, उसकी शबीह ताबूत आपके सामने पर फिक्र सुन लीजिएगा। इन सब के बाद आलम क्या हुआ है। आज मुहर्रम की तारीख है, आज मुहर्रम की कितनी तारीख है, 27 हो गई ना। 10 मुहर्रम को हुसैन शहीद किए गए हैं, 17 दिन गुजर गए हैं। हुसैन की बेटी हजरत से मर्तल की तरफ देख रही है, बाबा आ जाए तो बाबा से कहो, बाबा शिमले दरवाजे मारे। मैं चचा अब्बास से कहूँ, चचा अब्बास तुम्हारे पास शिमले बहुत रोना आया है, मेरे भैया को कैदी बना दिया गया। और ये फिक्रा सुनिएगा, बुरो के कहता मैं घर नहीं जाऊंगा। साल भर गुजर गए। एक रोज बैठा था कि किसी ने आहिस्ता जाके कहे, जा घर चला जा, घर चला जाओ। चीख के कहता कौन है, तो मुझसे कहता है घर चले जाओ। मैं घर नहीं जाऊंगा। आवाज आई, जाया अच्छा नहीं लगता। ये रो पड़ा, रो के कहता क्या कोई तौहीन हो गई, क्या कोई गलती हो गई,
क्या कोई गुस्ताखी होगी उसी फिक्र तो शबी की ज़ियारत कीजिएगा। मुझे नहीं पता कि आप शबी की कैसे ज़ियारत करेंगे। अजीजों, उसने कहा कि क्या कोई गलती हो गई, क्या कोई तौहीन हो गई, क्या कोई गुस्ताखी हो गई? आवाज आई, नहीं ज़ाहिर गुस्ताखी नहीं हुई है। तू जब से आया है अपने घर छोटी बच्ची को छोड़ के आया है। वो रोज मेरे आजा खाने में आती है और आके कहती मेरा बाबा करबला गया है, उसे वापस भेज दो। मैं कहूँगा सभी लाई जाए, जरा देखो बच्ची सफर कर रही है। इनसे निपट के कहना भाई से वतन जाना नसीब न हुआ, तुम सबने मस्तक आबाद कर दिया। वो बीबी कैदी बनी जिंदान जा रही है, सफर मुकम्मल न हुआ। एक करबला के सोने वाले शहीदों, तुम्हारी गुर्बत को सलाम, तुम्हारी मजलूमी को सलाम। पुकारी